हेलो व्यूअर्स। आज की इस पीरियड में मैं आप लोगों को पंक्चुएशन से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। पंक्चुएशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंक्चुएशन मार्क के बिना हम अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता नहीं दे सकते। जब हम बोलते हैं तो अपने भाषा को स्पष्ट करने के लिए हम कहीं ना कहीं रुकते हैं, किंतु जब हम लिखते हैं तब अपनी लिखावट में, अपनी लिखने की प्रक्रिया में पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं और वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। While talking, we use pauses, some slight and some longer, to group words into ideas. If a speaker is so fast that his sentence run into one another, it would be difficult to follow his sense. Punctuation marks like full stop, the marks of interrogation, the marks of exclamation, the commas, etc. are the equivalent of these pauses used to make the speaker or writer's meaning clear. Absence or wrong use of punctuation mark could totally distort the meaning of the sentence. पंक्चुएशन मार्क्स का हमारी लिखने में ज्यादा महत्व है और जो मूल रूप से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वह होते हैं फुल स्टॉप, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, और यू में से कोटेशन मार्क, अपस्ट्रॉफ, डैश and hyphen. These are very important. You have learned sentences, all those 5 kinds of sentences, including words also. Today, I am going to introduce the important punctuation marks that will make your English writing impressive, and it will provide the readers the clear-cut concept. So without wasting the time, let us see. The first one is known as, very simple, I am taking full stop. When you say full stop, it is simply symbolized like a dot. हम इसका प्रयोग कहां करेंगे, इसको मस्तिष्क में रखना है। सबसे पहला इसका प्रयोग हम करेंगे टू क्लोज ए स्टेटमेंट और कमांड। टू क्लोज ए स्टेटमेंट और कमांड। टू क्लोज a statement or command. For example, public speaking is an art. After that, you must use full stop. Or we may say, go there and bring my pen. The sentence is completed, full stop is required.
The second point, we can use after abbreviation. After abbreviation. एब्रिविएशन को हम संक्षिप्ताक्षर कहते हैं, जो संक्षेप में लिखा जाता है, जैसे प्रोफेसर SP राय, जैसे डिग्री को भी शामिल कर लेते हैं, जो डिग्री हम लोग हासिल करते हैं, जैसे MA, इसे फुल फॉर्म में कहा जाता है मास्टर ऑफ आर्ट्स. The full stop simply provides you a long pause, comma, that is a short pause. So whenever you are going to change the sentence, you must use full stop. The second one, let us see. The second one is known as mark of interrogation. This is like that. Mark of interrogation. द इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग हम कहां करेंगे? तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंत में. द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन. whenever wherever you are forming a direct question that requires the use of mark of interrogation. For example, do you walk every day? If you don't put the mark of interrogation, the sentence will be not interrogative. One example more you can see. Where did you buy these mangoes? Note of interrogation. So whenever you have note of interrogation, that must be used at the end of direct sentence. Just keep inside in your brain. And you know very well how many methods we have by which we can form the sentence interrogative. पूर्व के वीडियोस में, पूर्व की क्लासेस में, जहां पर आप सेंटेंस को पहचानने की कोशिश, शब्दों को पहचानने की कोशिश, सेंटेंस निर्माण करने की कोशिश आप कर रहे थे, वहां पर इन चिन्हों का, इन पंक्चुएशन मार्क्स का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है. अगले को देखें. मार्क्स ऑफ exclamation. This is like that. Marks of exclamation. आप जानते हैं एक्सक्लेमेशन का अर्थ होता है वैसी भावनाएं जिनको हम अचानक अभिव्यक्त करते हैं. तो जहां कहीं भी आपको अचानक भावनाओं को, सडन फीलिंग्स को व्यक्त करने की जरूरत होगी, दैट रिक्वायर्स द मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन. फॉर एग्जाम्पल, गौर करेंगे एग्जाम्पल से, आपको समझना और सीखना आसान होगा. आई एम सिंपली जस्ट रिवाइजिंग. जैसे व्हाट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. मार्क्स ऑफ exclamation is used. It shows that he is surprised to see the outstanding performance. One more sentence just to mark that.
just get out of the room. यहां पर मैं आपके साथ एक बात को शेयर करना चाहूंगा, गौर से समझने का भी प्रयास करेंगे। हमारी बोलने की जो लहजा होती है, बोलने का जो तरीका होता है, उससे बहुत बार यह स्पष्ट हो जाता है कि सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। It totally depends upon the intonation we the people use. For example, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, हमें क्या कहना होगा? I will go to a school. This sentence is simple, assertive. Therefore, full stop is required. अब इसी बात को हम एक अलग तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूछा जा रहा है, तो यहां पर पैटर्न चेंज हो जाएगी। मैं स्कूल जाऊंगा तो हमें कहना पड़ेगा विल आई गो टू ए स्कूल, एंड द सेंटेंस का भाव जो है वो इंट्रोगेटिव चला जाता है, बोलने के इंटोनेशन के आधार पर। अब इसी को थोड़ा सा सडन सरप्राइज में आप बोल सकते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। अब यहां पर ये जो भाव आ जा रहा है, एक्सक्लेमेशन का भाव आ जा रहा है। जब मेरी ये उम्र नहीं रही कि मैं स्कूल जाऊं, तो वहां पर हमें क्या चिन्ह लगाना पड़ेगा? हम सेंटेंस को लिखेंगे, आई विल गो टू ए स्कूल, और ये पंक्चुएशन मार्क्स सडन फीलिंग्स को दिखला रहा है, तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजर, in what context, in what respect he is going to use the sentences with mark of punctuation. अगले को देखते हैं। अगला जो शब्द है वह है हमारा कॉमा। कॉमा, कॉमा को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहूंगा कि द कॉमा इज द स्लाइटेस्ट पाउस। द यूज ऑफ कॉमा इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू ब्रिंग क्लैरिटी टू आवर राइटिंग। When you use them carefully, it brings clarity in your language. हम इसका प्रयोग कहां करें? थोड़ा सा तथ्यों से परिचित हो जाएं, इनका प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, गौर करेंगे। ए कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट थ्री और मोर वर्ड्स। ए कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट थ्री और मोर वर्ड्स in series when they only the last two words are connected by and. जहां कहीं भी तीन तीन शब्द का प्रयोग हो रहा है एक ही वाक्य में, और उस वाक्य में एंड का भी उपस्थिति है, तो वैसी स्थिति में हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे सी इज इंटेलिजेंट, कॉमा लेबोरियस एंड ब्यूटीफुल। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पकड़ में आ रहा होगा। दूसरा हम कहां प्रयोग कर सकते हैं कॉमा का? हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, द कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट फ्रेजेस इन सीरीज। अगर एक सीरीज में फ्रेजेस है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल काइंड्स ऑफ पीपल रिच एंड पुअर
young and old, young and old, comma, high and low, paid homage to the departed leader. आप देख रहे हैं कि यहां पर फ्रेजेज का एक सीरीज है और उस सीरीज को अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। अगले को देखें, अगला कॉमा का प्रयोग हम कहां कर सकेंगे? हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, तीसरा पॉइंट, ए कॉमा इज यूज टू सेट ऑफ a word of address placed whether at the beginning or at the end of the sentence. For example, जहां पर एड्रेस करेंगे, जैसे मिस्टर मोहन, कॉमा, could you come to my room for a minute? अब यहां पर रूम में आने के लिए, एक मिनट के लिए रूम में आने के लिए किससे कहा जा रहा, किसको एड्रेस किया जा रहा? तो एड्रेस किया जा रहा है मिस्टर मोहन को। तो मोहन के बाद एक कॉमा का होना बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट को देखें, हम कॉमा का प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल फ्रेजेज को अलग करने के लिए। कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट participle phrases. For example, three questions selected from the previous year question papers will give you sufficient practice. Three questions selected from the previous year question papers will give you the sufficient practice. कॉमा का अगला प्रयोग हम लोग सीखेंगे, क्वेश्चन टैग को अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, क्वेश्चन टैग के बारे में आपको जानकारी है कि यदि सेंटेंस असर्टिव है तो टैग निगेटिव होगा, अगर अफर्मेटिव है तो टैग निगेटिव होगा, और अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव होगा। तो क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वॉज ए यूजफुल डिस्कशन, was not it? तो जब क्वेश्चन टैग को अलग करने की बात होगी तो हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। अगले प्रयोग को देखें कि हम कहां पर इसका प्रयोग करते हैं कॉमा का। गौर करेंगे, यस एंड नो, दो शब्द है, यस एंड नो। व्हेन दे इंट्रोड्यूस द आंसर इन ए क्वेश्चन आर सेपरेटेड बाय ए कॉमा। जहां पर भी आप आंसर दे रहे हैं यस या नो के फॉर्म में, तो यस और नो के बाद कॉमा का होना जरूरी है। जैसे यस यू कैन
यूज माई पेन। अगले को देखें, इसका प्रयोग करते हैं when an adverb is placed at the beginning of a sentence to modify the whole sentences, a comma is placed after it. यदि किसी एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में हुआ है और वह पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो उस एडवर्ब के पहले कॉमा का होना नितांत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, fortunately nobody was injured. I hope you all will getting it on inside in your brain. पंक्चुएशन मार्क महत्वपूर्ण रोल अदा करता है सेंटेंस में वक्ता का या लिखने वाले का एक मीनिंग को, कंसेप्ट को क्लियर करने में। हम लोग सीख रहे हैं अभी कॉमा को, कॉमा के कुछ और पॉइंट्स हैं, लेट अस लर्न इट। अगला को देखते हैं, जब हमें माइल्ड एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शंस का, ध्यान रहे माइल्ड एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शंस लाइक ओ, वेल, अल्लास इत्यादि का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके पहले भी कॉमा का प्रयोग होना अनिवार्य है। जैसे वेल, आई विल थिंक ओवर इट। कॉमा की अगर बात करें तो कॉमा का प्रयोग अगला हम लोग करते हैं, ए कॉमा इज यूज्ड to separate direct speech from the rest of the sentence. कॉमा का प्रयोग डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को, बाकी सेंटेंस को अलग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे द स्पीकर सेड, कॉमा, अब यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा, ओविनर्स नेवर चीट एनीवन। अगले सेंटेंस, अगले प्रयोग को देखें, कॉमा का प्रयोग हम लोग करेंगे when relative clause can be either defining or not defining। जब रिलेटिव क्लॉज या तो डिफाइनिंग होगा या नॉन डिफाइनिंग होगा तो वैसी स्थिति में भी हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे मिस्टर शोहन, कॉमा, who issued this order, comma, is a very honest person। आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि कॉमा का प्रयोग हम कहां कहां पर करें। यदि हमसे छूटता है या भूल होती है तो निसंदेह अर्थ पर उसका प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है। अगले को देखें, अगर इन सारी बातों को मस्तिष्क में आपने रख लिया है तो निश्चित रूप से आपका कॉमा का प्रयोग करने में कोई गलती नहीं होगी। कॉमा हमें शॉर्ट पाउज का कंसेप्ट देता है, जबकि फुल स्टॉप लॉन्ग पाउज का कंसेप्ट देता है। अगले वर्ड्स को देखते हैं। अगला वर्ड हम लोग के पास है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन से मेरा तात्पर्य है, सेमी कॉलन का जो चिन्ह होता है उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। मात्र ये 2 डॉट से बनता है, इसे हम सेमी कॉलन के नाम से जानते हैं। ए सेमी कॉलन इज यूज्ड टू सेपरेट
coordinate clauses not joined by a conjunction. Once again, I'm repeating, a semicolon is used to separate coordinate clauses not joined by a conjunction. ये कोऑर्डिनेट क्लाउज को जो कि किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, हम वैसी स्थिति में सेमीकॉलन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। ही डज नॉट respond to my letters. ध्यान रहे, चिन्ह को ध्यान से लगाएंगे। ऊपर में एक डॉट और नीचे में कॉमा का साइन होता है। ऊपर में एक डॉट, नीचे में कॉमा का साइन, गौर करेंगे। ही डज नॉट अटेंड my phone. He ignore my messages. फुल स्टॉप। एक ही बात, एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग बातों को रखते हैं तो सेमीकॉलन का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। यह सेपरेट करता है कोऑर्डिनेट क्लाउजेज को, जो कि किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होता। दूसरा सेमीकॉलन का प्रयोग हम कहां करेंगे? सेमीकॉलन का प्रयोग करेंगे इफ एक्सप्रेशंस लाइक हाउएवर, नेवरथलेस, हेंस, etc come between two independent clauses, a semicolon is placed before them. कैसे? गौर करेंगे, एग्जाम्पल से समझना आसान होगा। आई carefully read the letter twice, semicolon. However, I could not understand what the problem was. तीसरा इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग सेमीकॉलन को। वह पॉइंट होगा, a semicolon is used to separate coordinate clauses when these clauses contains commas within them. सेमीकॉलन का प्रयोग हम सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लाउजेज के साथ करते हैं जब उन क्लाउजेज के पास कॉमा का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। जैसे एज जार loved me, comma, I weep for him, semicolon, as he was fortunate, comma, I rejoice at it, semicolon, as he was ambitious, comma, I killed him. Therefore, when a semicolon is used to separate coordinate clauses, when these clauses contains commas within them. अगले को देखते हैं। अगला हम लोग के पास
पंक्चुएशन मार्क में है कॉलन। उसे सेमी कॉलन कहते थे, जिसका अध्ययन आपने अभी भी देखा और सीखा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कोलोन की, कॉलन की। और इसका जो चिन्ह होता है, यह दोनों डॉट्स आमने सामने होते हैं। सेमी कॉलन में ऊपर एक डॉट्स होता है और नीचे कॉमा होती है, जबकि कोलन में ऊपर और नीचे डॉट्स होते हैं, फुल स्टॉप की तरह। गौर कीजिएगा, इसका पहला प्रयोग हम लोग करते हैं। द कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट ऑफ आइटम्स। अगर एक लिस्ट है आइटम्स का, तो इस स्थिति में कोलन का यूज किया जाता है। जैसे द 4 great tragedies written by Shakespeare are colon Macbeth, Othello, Hamlet, comma King Lear। अगला प्रयोग देखें सेमीकोलन का। ये छोटी छोटी बातों को यदि मस्तिष्क में आप रखते हैं, तो निश्चित रूप से पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना आपके लिए सहज हो जाएगा। दूसरा सेमीकोलन का प्रयोग कहां करेंगे? दूसरा प्रयोग करेंगे, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रॉब्लम इज दिस सेमीकोलन, where shall we get to? Where shall we get qualified and experienced people to manage the plant? तीसरा इसका प्रयोग भी देख लें। इट इज समटाइम्स, कॉलन का प्रयोग कभी कभी कंट्रास्ट, टू कंट्रास्ट को दिखलाने के लिए भी किया जाता है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले, टू एक्सप्रेस टू कंट्रास्ट। फॉर एग्जाम्पल, very popular sentence, this one is, man proposes, God disposes। अगले पंक्चुएशन मार्क को देखते हैं। अगला पंक्चुएशन मार्क्स आ रहा है आपके पास एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफ का साइन जो होता है, किसी लेटर के ऊपर, शब्द के ऊपर एक कॉमा का निशान। ये भी कॉमा की तरह ही होता है, लेकिन शब्द के थोड़ा सा ऊपर जाता है। इसका सबसे साधारण प्रयोग यह है कि इसके द्वारा हम पोजीशन को दिखलाते हैं, अधिकार को दिखलाते हैं। An apostrophe is used to show possessions. For example, आप कह सकते हैं मोहन्स काउ। अब यहां पे मोहन्स काउ से साफ साफ पता चल रहा है मोहन की गाय। तो जहां कहीं भी अधिकार को दिखलाना होगा, आप एपोस्ट्रोफ का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रयोग करते हैं, an apostrophe is used with expression of time, space and money। एपोस्ट्रोफ का प्रयोग हम टाइम के लिए, स्पेस के लिए और मनी के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझें,
ए डेज एब्सेंस। आप कह सकते हैं ए किलोमीटर्स, ए किलोमीटर्स एस एस डिस्टेंस। आप कह सकते हैं 5 रुपीज वर्थ। तो जहां कहीं भी टाइम, स्पेस और मनी को दिखलाने की बात होगी, आप एपोस्ट्रोफियस एस का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा इसका प्रयोग करते हैं एपोस्ट्रोफियस एस का, गौर कीजिएगा। तीसरा इसका प्रयोग करते हैं एन अपॉस्ट्रोफ इज यूज्ड टू मेक शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग करने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं डू नॉट, तो हमें शॉर्ट में लिखना पड़ता है डोंट। आप कहते हैं ही हैज, तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ही। आप कहते हैं विल नॉट, तो आप कह सकते हैं won't। एपोस्ट्रोफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नो डाउट। और कभी कभी तो ये प्लूरल्स ऑफ लेटर्स, ध्यान रहे, अक्षरों के प्लूरल करने के लिए भी एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों का प्लूरल, जैसे आप कह सकते हैं एंड टीज, आईज एंड टीज। आप कह सकते हैं टू, आप कह सकते हैं 3 5 फाइव्स। इस तरह से लेटर्स का प्लूरल फॉर्म करने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। अगले को देखें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक ही लेक्चर में मैं सब कुछ को ला दूं, ताकि आपको ज्यादा समय ना देना पड़े। कम से कम समय में, एक पीरियड में 40 मिनट की एक पीरियड स्वस्थ होती है। एक पीरियड में ही आपको सीखने, समझने और जानने का पूरा सुअवसर मिल जाए। अगले शब्द को लेते हैं। अगला शब्द को ले रहा हूं मैं डैश। डैश को चिन्हित करते हैं बिल्कुल एक छोटा सा मार्क से। A dash is used to introduce an explanation in the middle of the sentence. सेंटेंस के बीच में एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीबडी डैश द स्पेक्टेटर, कॉमा द प्लेयर्स, कॉमा द अंपायर्स, dash applauded his wonderful परफॉर्मेंस। डैश थोड़ा लंबा होता है, ध्यान दीजिएगा, और हाइफन थोड़ा छोटा होता है। डैश की लंबाई देने की में लंबाई थोड़ी सी बड़ी होती है, जबकि हाइफन का छोटा होता है। डैश का प्रयोग जब हम करते हैं तो एक्सप्लेनेशन को, जो कि मिडिल ऑफ द सेंटेंस आता है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अगले सेंटेंस को, अगले यूज को देखें। टू डैशेस आर यूज टू मार्क ए पैरेंथेसिस। जब कभी हम दो डैशेस का प्रयोग करते हैं और वैसी स्थिति में पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें। एट लास्ट thou
thou, I feel embarrassed. I feel embarrassed to admit it, I had to. Surrender. पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम डैश का प्रयोग करते हैं। अगले पंक्चुएशन मार्क्स को देखा जाए। अगला पंक्चुएशन है हाइफन। हाइफन, जैसा कि मैंने कहा डैश थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन हाइफन छोटी सी होती है। हाइफन का प्रयोग कहां करेंगे? ए हाइफन इज यूज्ड विथ कंपाउंड नंबर्स फ्रॉम 21 टू 99। गौर कीजिएगा, 21 से लेकर 99 तक की जो गिनती होती है उसमें हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है 43, तो दोनों के बीच में हाइफन आएगा। माइंड इट, 21 से लेकर 99 तक के संख्या के साथ हाइफन आना है। पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग इसका करते हैं, इट इज यूज्ड इन राइटिंग कंपाउंड वर्ड्स। वैसे शब्द जो दो शब्दों से बने हैं उनके साथ भी हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे मदर इन लॉ, जैसे कमांडर इन चीफ इत्यादि। हाइफन का प्रयोग कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ भी किया जाता है। कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड जब मैं बोल रहा हूं तो इसमें एक शब्द नहीं दो शब्द होंगे, तो जब भी कंपाउंड एडजेक्टिव होगा हम हाइफन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं ए 10 रूपी नोट। आप कह सकते हैं ए 5 स्टोरी बिल्डिंग। I hope all these punctuation marks will be helpful to develop your concept in writing correctly. इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूर्व का जितने भी एजुकेशनल वीडियो को तैयार किया उसमें आप सभी लर्नर्स को, सीखने वाले को, छात्रों को बेस दे दिया हूं। आज अंग्रेजी ग्रामर का पूरा बेस आपके चैनल पर उपलब्ध करा दिया। ध्यान ये रखना है कि जो छात्र प्रारंभ से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सीखना सार्थक होगा। वैसे छात्र जो नरेशन को सीखना चाहते हैं, वॉइस को सीखना चाहते हैं और उनके पास ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मतलब टेंस का जानकारी, मॉडल्स का प्रयोग का जानकारी नहीं है, तो वह नहीं सीख पाएंगे। चैनल के अंतर्गत सारे एजुकेशनल वीडियो का निर्माण मैंने बिल्कुल कड़ीबद्ध किया है। सभी को आप पहचान सकते हैं उसके पब्लिकेशन डेट के अनुसार, और जैसे जैसे पब्लिकेशन डेट के अनुसार वीडियो ज्ञान से भरा हुआ ये वीडियो आगे की ओर बढ़ता जाता है, आपकी सीखने की प्रवृत्ति भी डेवलप करती जाती है। आगे आने वाली क्लासेस में इस बेस के आधार पर, इन फंडामेंटल्स के आधार पर अनेकों नई नई कंसेप्ट आएंगी जो मैं आपको समय समय पर लाता रहूंगा, ताकि आपका ज्ञान का विकास हो, आप जीवन में जीत को हासिल करें, आपकी लैंग्वेज मजबूत हो, आपका लिखना और बोलना प्रशंसनीय हो। आई होप today's session will be very, very helpful for all of you. This is enough for the session.
Saying all of you, thank you very much.